اسلام ایک ایسا دین ہے جو بالکل بھی متشدد نہیں ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس نے برقع پہنا ہوتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے نیچے سے کچھ اور ہی آئٹم نکلے گی. ہمارے ہاں یہ بھی بہت بےہودہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ مرد ہی تو ماں بناتا ہے نا. بھائی آپ نے ماں بنایا لیکن 9 مہینے آپ نے اس بچے کو کیری نہیں کیا. ہاں ہمارے ہاں جو ملاازم ہے نا اس نے اسلام کو برباد کیا ہے. بالکل کہ مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا, مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا, ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا اور. ہمارے ہاں آپ قرآن پاک کھولیں, کہاں پہ سنی کا ذکر ہے, کہاں پہ وہابی کا ذکر ہے, کہاں پہ شیعہ کا. جب ہمارے دین میں یہ تمام فرقہ واریت ہے ہی نہیں تو پھر کہاں سے آئی ہے؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. کیا کہنے, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. کیا کہنے. بیٹی ہو تو رحمت, بیوی ہو تو شوہر کے نصف ایمان کی وارث, اور ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت. السلام علیکم ناظرین, آج ہم یہاں پہ خواتین پر تشدد کے حوالے سے, بلکہ اوور آل انسانیت جو ہے انسان پہ تشدد کے حوالے سے یہاں ایونٹ تھا دیا فاؤنڈیشن کی طرف سے, دیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم بٹ صاحبہ, اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ان کا موٹیو کیا تھا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم کیا حال ہے؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر. مزاج خیریت ہے؟ خیریت سے. میم آج ایونٹ تھا یہاں پہ انسانوں پہ تشدد کے حوالے سے کہہ لیں, خواتین کے تشدد کے حوالے سے کہہ لیں, مردوں پہ تشدد کے حوالے سے کہہ لیں, تشدد کے حوالے سے ایونٹ تھا. انسانوں پہ جو ذہنی تشدد ہوتا ہے یا ہر قسم کا جو ٹارچر ہوتا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلی جو بات میں کہوں گی کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. ہم مسلمان ہیں, یہ اس کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اس کے آگے ہمیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے. اگر ہم اس کی روٹس کو سمجھ لیں, اسلام ایک ایسا دین ہے جو بالکل بھی متشدد نہیں ہے. بالکل. تو جب اسلام میں تشدد کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر ہم لوگ کس طرح سے آج ایک ایسے ایونٹ پہ ہیں جہاں پر تشدد کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو اگر ہم اپنی روٹس کی طرف لوٹتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے پاکستانی, جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا, وہ تشدد فری ہو سکتا ہے. بالکل یقیناً اگر ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں تو یہ نوبت ہی نہ آئے. میم آج کے معاشرے میں جب یہ تشدد, ذہنی تشدد کہہ لیں یا جسمانی تشدد کہہ لیں, اس تشدد کی نوبت کیوں آتی ہے, سچویشن کیوں کریٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں, اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. کسی ایک چیز کو آپ ہرگز بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھر سے اگر آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو ڈیفائن شاید اس طرح سے نہیں کر پاؤں کیونکہ ہماری روٹس بہت گہری ہیں تشدد کے حوالے سے. اس میں اگر ہم آج سے کوئی 50 سال یا 60 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو شاید ایجوکیشن کی کمی, جس کو ہم ایک فیکٹر کاؤنٹ کر سکتے ہیں. لیکن آج ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں. وہی میں کہنے جا رہی ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پیشتر ہم اس چیز کو کاؤنٹ کر سکتے تھے, لیکن آج ایجوکیشن اس قدر عام ہو چکی ہے کہ یہ ایجوکیشن ہی تشدد کی جانب جو ہے وہ ہمیں لے کے جا رہی ہے. اس کی ریزنز یہ ہیں کہ جو ہماری آبا کی طرف سے, ہمارے اجداد کی طرف سے جو ایک پینیٹریٹ کر گئی نا چیز کے مرد کی حاکمیت, اس ٹائم پہ علم کی کمی کی وجہ سے مرد کو حاکم تصور کر دیا گیا نا, تو عورت اسی ٹرانس میں ہے اور مرد اسی ٹرانس میں ہے. آج کا مرد اگرچہ ایجوکیٹڈ ہے لیکن اس نے چونکہ اپنے باپ کو دیکھا اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی چیز ہے, یعنی جو اسے پلیٹ فارم دیا گیا اسے یہی بتایا گیا کہ مرد حاکم ہے. اب آج کے موقع پہ اگر ہمیں یہ ایونٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آگاہی دینا ہے کہ جو پچھلی نسل کر چکی ہے وہ سب کچھ درست نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے وقت کے ساتھ فلرش کرتی ہے, اس میں آتی ہے ڈیولپمنٹ آتی ہے, تو ہمارے رویوں میں ڈیولپمنٹ ابھی تک نہیں آ سکی ہے. تو یہ موقع ہے, یہ ایسی تقاریب یا ایسی جو سیمینارز ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہماری مرد اور عورت دونوں کی جو نفسیات ہے اس کو گرو کرنے کا موقع ملے. تو میم میں بیسک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے خیال میں آپ کی جو رائے ہے, آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اس میں زیادہ تر جو ہے وہ غلطی یا مسٹیکس کس سے ہوتی ہیں؟ دیکھیں, غلطیاں اور مسٹیکس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خمیر دیا ہے وہ خطا کا خمیر دیا ہے. تو ہم ایگزیکٹلی, تو میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ مرد خطاوار ہے یا عورت خطاوار ہے. خطائیں دونوں جانب سے ہو جایا کرتی ہیں. اصل چیز ہے کہ ہم بیٹھیں,
कोई मसला है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन निकालें। तुर्की में कहावत है कि हर मसले का हल होता है। जब आपके पास कोई मसला आता है तो उसके बारे में परेशान नहीं, उसका हल तलाश करें, और अगर उसका हल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो यानी कि कहने का मतलब सिर्फ एक है कि अगर हल है तो तलाश करो और आगे बढ़ जाओ, नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, वही अभी जो आपने सेमिनार में भी सुना कि औरत है तो मर के निकलेगी यहाँ से, हमारे यहाँ ये पेनिट्रेट किया गया ना औरत की ज़हनियत के अंदर। तो असल में इसमें थोड़ा सा सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि जो औरतें हैं कुछ, क्योंकि काली भेड़ें हमारे अंदर छुपी हुई होती हैं, कुछ जी मर्द भी तो होते हैं, मर्द ज़्यादातर कह ले आप होते हैं, चले हम मान लेते हैं, लेकिन आपका बड़ापन है ये मान लेते हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ खवातीन हैं जिन्होंने मतलब मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट किए और उनको क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह के जो प्रोटेस्ट हुए, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? ऐसी औरतों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, उनकी भी जो ग्रूमिंग है ना, मेंटल ग्रोथ वो नहीं हो सकी है। उन्हें वो लिबरलिज्म के नाम पे कुछ टैग्स दे दिए गए, उनको सोचे समझे बगैर वो इस टैग को लेके चल पड़े। अगर हम उस टैग को देखते भी हैं तो मैं उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को नेगेटिव सेंस में नहीं लें। अगर एक कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इसकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल की देती हूँ कि मैं मार्केट में चलती हूँ, कोई मुझे टच करता है, वाई? मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता ना, ये मैं हूँ, ये मेरा जिस्म है, तो क्यों किसी ने मुझे टच किया? तो आपकी ग्रोथ जो है ना मेंटली, वो एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। ये नहीं कि खाना मैं गर्म करूँ या खाना तुम गर्म करो। ये अच्छा, तो मैम इस चीज़ की हमें इस्लाम इजाज़त देता है कि जो मतलब ये नारा है, इस नारे को कंटिन्यू करने की इस्लाम इजाज़त देता है? कौन से वाली, खाना गर्म करने की? नहीं ये नहीं, मतलब मेरा जैसा मेरी मर्जी है, नहीं उसमें एक तो होता है ना, चलो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपने कहा कि मुझे टच क्यों किया, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये नारा लगाते हैं उनके हवाले से आप क्या? देखिए, इसमें भी मैं वही बात करूंगी, आप लोग कहेंगे मैं बार बार, मैं मौलाना नहीं हूँ बिल्कुल भी कि इस्लाम ने कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। जब पर्दे का हुक्म हुआ ना, बिल्कुल, कि पर्दा करना है, तो औरतों ने जो पर्दे लटके हुए थे, जो घर की बेड की शीटें थी उस ज़माने में, उन्होंने वो लपेट ली कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। तो हम लोगों को आज के दौर में शायद हम उस तरह से, क्योंकि हर चीज़ जो है वो वक्त के साथ ग्रो होती है, आज के दौर में हम बुर्का पहन के बैठ जाएंगे तो किसी तरह से भी हम सोसाइटी में वो एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे ना। बिल्कुल। तो आपकी जो लिमिटेशंस हैं, जो वक्त के साथ साथ फैलती चली जाती हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना है, उसके साथ हमें आगे बढ़ना है, और बाकी वो जो आपका कहना है कि उस चीज़ को मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसमें वो जो लिमिट है उसको एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे लेके चलना है। अच्छा मैम, आपने यहाँ पे पर्दे की बात की, चले हम एक इस्लामिक हवाले से हदीस ले लेते हैं कि हज़रत फ़ातिमा बैठी हुई थी, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बाबा मैं पर्दा कहाँ तक करूँ, मतलब मुझे कहाँ तक पर्दा करना चाहिए चेहरे का, ये वो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती वाली बात की, जो अगर हम समझें उसको तो बहुत इसमें गहराई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ तक तुम जहन्नुम की आग अपने जिस्म पे बर्दाश्त कर सको, वहाँ तक पर्दा न करो। देखिए, अगर आप इस्लाम के इस पहलू को लेके चलेंगे ना, तो फिर मर्द को भी निगाह नीची करने का हुक्म दिया गया है। बिल्कुल दिया गया, लानत किया वो शख्स। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ रोड पे चलते हुए कौन सा मर्द है जो निगाह नीची करता है? एक मिनट, माजरत के साथ, अगर औरत ने बुर्का पहना होगा, ठीक है, मर्द चले 95% नहीं, 5% मर्द तो ऐसे होंगे ना जो बुर्के के लिहाज से चले आंखें नीचे कर लेंगे कि इसने बुर्का किया हुआ है, ये बाहया है, तो इस वजह से उसको। अच्छा, इसमें अब बात बहस की आ जाती है। बहस तो आप जितनी मर्जी तवील कर लें, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हमने नहीं, ये बात डिबेटेबल है ना, इसमें कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती है। आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा नहीं होता है कि जिसने बुर्का पहना होता है, लोग उसको कहते हैं कि इसके नीचे से कुछ और ही आइटम निकलेगी? ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो इसलिए आप इस चीज़ को, दूसरी चीज़ जो मैं इसी तनाजुर में कहना चाहूँगी कि जो गलियाँ आज तंग है ना, लोग वहाँ से छोड़ के सोसाइटीज़ में क्यों जा रहे हैं? तंग गलियों से सोसाइटीज़ में क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हमारी इन तंग गलियों में अच्छे घर के रिश्ते नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक समाजी जो बुराई कह लें या जो समाजी रवैया है, वो पेनेट्रेट इस तरह से हो चुका है कि अगर आप इस्लाम की वो कंडीशन जो आप कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर मर्द को वो मर्द बनना है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो वो ज़ात बनने के लिए देखिए, आप हज़रत आयशा
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के ऊपर तहरीरें मिलती हैं, आप उनको पढ़ें तो आपको लगेगा जैसे आप कोई लव स्टोरी जो है वो पढ़ रहे हैं। इतना ख्याल, इतना, अभी आप ने वो सुना भी जो कहा जा रहा था कि वो मुझे दुनिया से जाने की जल्दी है कि जन्नत में आयशा मेरी बीवी होगी। तो आप ये बताइए कि हमारे यहाँ का कौन सा मर्द है जो इस रवायत को लेके चलता है? तो ये बात है कि जब आप इस रवैये की बात करेंगे इस्लामिक, तो फिर दोनों तरफ से आप बात वहीं पे आगे अटक जाती है कि दोनों को पढ़ना चाहिए। वही बात है कि अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी हिस्ट्री को पढ़ लें, हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा, हज़रत फातिमा वाली, इनकी हिस्ट्री को पढ़ लें तो हमें इस सिचुएशन में क्रिएट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम बिल्कुल इस सिचुएशन में पढ़ेंगे नहीं। और दूसरी चीज़ ये जिस पे मेरा फोकस होता है, जिस दीन की इम्प्लीमेंटेशन की आप बात करते हैं, मेरे नज़दीक उसमें मर्द और औरत की तखसीस है, अल्लाह ताला ने कर दी। मर्द का सिलेबस अलग कर दिया, औरत का सिलेबस अलग कर दिया। मर्द अपना सिलेबस उसको फॉलो करे, औरत अपना सिलेबस फॉलो करे, तो दरमियान में आप देखिए, आप पूरा कुरान खोल के देख लीजिए, उस पूरे कुरान पाक में चंद जगहों पे मर्द को हाईलाइट किया गया, चंद जगहों पे औरत को किया गया। ठीक है, पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने इंसान को मुखातिब किया है। इसका मतलब कि इंसानियत प्रायोरिटी पे है। जब आपके अंदर इंसानियत डेवलप हो जाएगी ना, फिर मर्द और औरत का झगड़ा नहीं रहेगा, फिर झगड़ा नहीं रहेगा। बिल्कुल, देखिए एक औरत को अल्लाह ताला ने 3 मर्तबे ऊपर कर दिया जब वो माँ बनती है। ठीक है, हमारे यहाँ ये भी बहुत बेहुदा बहस छिड़ जाती है कि मर्द ही तो माँ बनाता है ना। भाई आपने माँ बनाया, लेकिन 9 महीने आपने उस बच्चे को कैरी नहीं किया। हाँ, तो आप उसको उस वक्त भी आप मेंटली टॉर्चर करते हैं जब औरत को ये कहते हैं। तो आप अगर इंसानियत के पैरामीटर्स अपना लेते हैं ना, तो फिर मर्द और औरत की तखसीस रहती नहीं है, वो खत्म हो जाती है। उनको पता है कि ये मेरे लिए रूल्स है, ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा सिलेबस है, अब हमें इकट्ठे चलना है। फिर इंसानियत आ जाती है। तो जो ये मर्द और औरत में डिफरेंस पैदा करते हैं लोग, जो काली भेड़ें हमारे अंदर छुपी हुई हैं, जो मर्द को ज़्यादा दर्जा देने की कोशिश करते हैं या औरत को ज़्यादा दर्जा देने की कोशिश करते हैं, इन तरह के लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मैं सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करूंगी कि हमारे यहाँ जो मुल्लाइज़म है ना, उसने इस्लाम को बर्बाद किया है। बिल्कुल, आप क्रिश्चियनिटी को देख लें। मैं एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ और नाज़रीन को भी, कि मुफ्ती से कभी नुस्ख़े इस्लाम न लेना, मुफ्ती से कभी नुस्ख़ा इस्लाम न लेना, होता है मरज़ और ये देता है दवा। और बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि हमारे यहाँ जो इस्लाम की शक्ल बिगड़ी है वो मुल्लाइज़म की वजह से बिगड़ी है। मैं आपको बता रही थी कि क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, आप यहूदियत को ले लीजिए, उनके यहाँ तौरात, ज़बूर, इंजील, हर चीज़ में तब्दीलियाँ कर दी गई। इसलिए फिर भी हमारे से बेहतर है। उसके पीछे मैं रीज़न आपको बताती हूँ कि उन्होंने अपनी किताबों में तहरीफ कर ली, ठीक है, और वक्त के साथ साथ उन्होंने इन चीज़ों को साइड पे कर दिया। उसमें भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है वो उनके फिरके आ गए और अपनी अपनी मर्जी के उन्होंने दीन को अपने लिए जो है वो रख लिया। फिरके हैं 4-5 तो मेजर हैं, लेकिन हमारी तरह काफी उनके अंदर भी है। हमारे यहाँ आप कुरान पाक खोलें, कहाँ पे सुन्नी का जिक्र है, कहाँ पे वहाबी का जिक्र है, कहाँ पे शिया का? जब हमारे दीन में ये तमाम फिरकावारियत है ही नहीं, तो फिर कहाँ से आई है? ये मुल्लाइज़म लेके आई है ना। मैं बताता हूँ, ये फिर हमने दुकान भी तो चला ली, पेट नहीं भरना, मुल्लाइज़म है ना। देखिए, ये सब मुल्लाइज़म है। अगर हम इस मुल्लाइज़म से पीछा छुड़वा के, ये जो हमारा कोई मसला खराब होता है, कोई किसी किस्म का, हम बाबा जी के पास पहुँच जाते हैं। ये बाबा जी के पास जाने की बजाय घर में जो कुरान रखा हुआ है, आप उसको खोलें तो आपकी ज़िंदगी का हर मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे लिटरली अपनी ज़िंदगी का एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। एक नहीं, मैंने बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे कोई इशू होता है ज़िंदगी में, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं 2 नवाफिल अदा करती हूँ और उसके बाद मैं कुरान पाक से रुजू करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम होती है उसका हल मुझे मिल जाता है। क्या कहने, और इससे ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है ही कोई नहीं है। बिल्कुल। जाते जाते आप आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहिए? आज के इवेंट के हवाले से मैं यही कहूँगी कि एक बहुत ही ज़बरदस्त काविश थी और मेरा ख्याल है कि ऐसी जो कोशिशें हैं या काविशें हैं वो होती रहनी चाहिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है कम से कम वो तो अवेयर हो जाए। जो पिछली नस्लों ने किया, जो हम कर रहे हैं, जो हम भुगत रहे हैं, वो अगली नस्ल ना भुगत पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी गुफ्तगू मैम ने की और नाज़रीन उम्मीद है कि आपको इनकी गुफ्तगू पसंद आई होगी। और यकीनन अगर हम इंसान बन जाए ना, माज़रत के साथ, अगर किसी को मेरी बात जी मैम से पहले शेर सुनते हैं जी, कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। क्या कहने? फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। क्या कहने कि क्योंकि हमारे जो मैम ने बात की, हमारे जो माशरे को ना मुल्लाइज़म ने ख़राब कर दिया है, तो वही शेर कमाल शेर है। मैं फिर दोबारा कह देता हूँ कि मुफ्ती से कभी नुस्ख़ा इस्लाम न लेना, मुफ्ती से कभी नुस्ख़ा इस्लाम न लेना,
ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا. اور ناظرین یقیناً آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی, اور یقیناً انسان بن جائے نا, ہم لوگ اگر انسان بن جائیں تو ہمارے اندر یہ مرد اور عورت والا ڈفرینس پیدا ہی نہ ہو, اور ہم یہ مرد پہ تشدد اور عورت پہ تشدد والی باتیں سننے کو اور ایسی سچویشن کریٹ نہ ہو. امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. دیکھتے رہے نوائے انسان, اللہ نگہبان.